Hello everyone. Today we will be beginning with the fourth unit of engineering hydrology subject, and the first topic that we will be going to cover is the groundwater. मेरा नाम है शिवम पांडे and let us now begin with the first course outcome here. तो हमने पहली 3 यूनिट्स में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड देन रन ऑफ एंड देन फ्लड एस्टिमेट्स के बारे में हमने पढ़ा था. Now in the fourth unit we will be understanding about the various forms of water, of the various forms of groundwater basically, and their aquifer properties. And then in the fifth unit we will move on to the other topics of groundwater modeling and the different types of well construction activities. These are the references from which the material has been prepared, and let us now start with the topics that we have to cover in this fourth module. तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर की, उसका कुछ इनिशियल पार्ट की कैसे ग्राउंड वाटर फॉर्मेशन होता है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ सब सरफेस वाटर, व्हाट इज़ द एक्यूफर, एक्यूफर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में देखेंगे, अकरेंस ऑफ द ग्राउंड वाटर, हाइड्रोजियोलॉजी एंड एक्यूफर्स एंड देन ग्राउंड वाटर मूवमेंट. तो पानी ग्राउंड के नीचे सब सरफेस पे कैसे मूव करता है उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे होगा. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो थ्रू द कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्यूफर्स. तो एक्यूफर में दो हैं, एक कन्फाइंड एक्यूफर है, एक अनकन्फाइंड एक्यूफर है. तो उसमें किस तरीके से फ्लो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज़ द टॉपिक ऑफ वेल हाइड्रोलिक्स, जहाँ पे हम मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर की बात करेंगे और अगर हम वेल इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से कंसेप्ट डेवलप होते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे होंगे. यहाँ पे सिंगल एंड मल्टीपल वेल सिस्टम देखेंगे, पार्शियली पेनिट्रेटिंग वेल्स देखेंगे with comparison to the fully penetrating well. We will also see the topic of image wells and then mutual interference of the wells, which are these three topics we will cover together, and then we will move on to the losses which are incurred in the well जिसके कारण efficiency of the well is affected, and then we will talk about the specific capacity also. So these are the topics that we have to cover in this fourth unit. So the first topic here, that is the groundwater. Groundwater hydrology की यदि मैं बात करूँ तो it is a science of occurrence, distribution and the movement of the water below the surface of the earth. So एक तो surface sources हैं जैसा कि आपका river हो गया, stream हो गया and lake, pond, these are different things there. But जब हम ground water की बात करते हैं तो below the surface of the earth, जहाँ पे हमारा जो major water bearing formation होता है उसको हम बोल देते हैं aquifer. Okay? So water exists below the ground also, but क्या वो extract कर सकते हैं आप, कितना extract कर सकते हैं, कितनी amount में extract करेंगे, these are the few things that we will be discussing in this topic of groundwater hydrology. What is groundwater? First of all, it is underground water that occurs in the saturated zone of variable thickness, okay, and depth of the earth's surface. अच्छा, यदि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि it is a saturated zone of variable thickness, यानी कि if I say that this is the ground level and नीचे यहाँ पे there is an impermeable boundary, this is the impermeable boundary, okay. Then if I say that due to the rain what happens, the some of the part is going for the runoff here, कुछ runoff के कारण निकल जाएगा due to the slope of the land, okay, and some part will be what, infiltrating and percolating to the lower layers. अच्छा, ये जो है वाटर जाके क्या होगा, जहाँ पे भी उसको इम्परमेबल बाउंड्री मिलेगी वहाँ पे जाके वो स्टोर होने लगेगा. तो जो भी वाटर लेवल जहाँ तक भी पहुँचता है दैट इज कॉल्ड एज द वाटर टेबल, एंड द वाटर दैट इज गेटिंग स्टोर्ड हेयर इन दिस रीजन हेयर इट इज कॉल्ड एज द ग्राउंड वाटर. एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा, जब हम सरफेस सोर्सेज की बात करते हैं, जैसे कि ये अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ द रिवर, ओके, दिस इज़ द रिवर, जो क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ द रिवर क्रॉस सेक्शन. तो यहाँ पे तो आपको प्योर वाटर मिल रहा है जहाँ पे सेडिमेंट्स हैं, बट आप उसको आराम से क्लीन अप कर सकते हैं, ओके. तो यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं, आपने उसका स्क्रीनिंग भी किया तो आराम से आपको क्लीन वाटर मिलेगा. बट जो यहाँ पे है ग्राउंड, ये वाटर टेबल आपका, ये जो ग्राउंड वाटर है ये आपको सॉइल के साथ मिलता है, ओके. सो द सॉइल पार्टिकल्स आर इन देयर. तो इस पूरे जोन में दिस एंटायर जोन इज कंसिस्टिंग ऑफ द सॉइल. और सॉइल में हमने पहले ही बात करी है कि सॉइल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सॉइल कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स एंड द वॉइड्स. और इन वॉइड्स में क्या होता है, वॉइड्स में दो चीज़ें होती हैं, या तो एयर या तो वाटर, या तो दोनों ही चीज़ें होंगी. तो एयर एंड वाटर इज प्रेजेंट देयर. तो सॉलिड्स के अलॉन्ग जो वाटर प्रेजेंट है हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यही वाटर
जो यहाँ पे voids में प्रेजेंट है सॉइल के, उसी को हमें एक्सट्रैक्ट करना है. सो इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क. नाउ लेट अस सी हियर वन मोर पॉइंट, that around 30% of the fresh water of the world's resources exist in the form of groundwater. तो ये जो है, ये सॉइल का पोर्शन जो है, ये दिस पोर्शन इज समवॉट सैचुरेटेड. जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें, तो ये पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या है, ये सैचुरेशन यहाँ पे नहीं है. ओके और ये जो पोर्शन है आपका, दिस इज द सैचुरेटेड पार्ट. जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, दिस इज द सैचुरेटेड पार्ट. ओके so we'll talk about these things in this class. Groundwater का जो main source है, that is precipitation, that is the rainfall here. Okay, a portion of the rain infiltrates into the ground and travels down, and when an impervious layer is encountered, movement is stopped, जो मैंने आपको previous अभी diagram में बना के बताया, and it forms the groundwater. Groundwater reservoir consists of water held in voids within a geological stratum. तो है तो वो soil, अब soil बहुत ही डेंस भी हो सकती है, जिसमें वॉइड्स बहुत कम हो या तो वॉइड्स ज़्यादा हो, तो डिपेंड करता है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. तो सॉइल के अंदर जो सॉलिड्स हैं और जो वॉइड्स हैं, उसके ऊपर वाटर कलेक्टिंग एबिलिटी या वाटर स्टोरेज एबिलिटी डिपेंड करेगी. ओके सो दिस रेन विल इन्फिल्ट्रेट, इट विल ट्रैवल डाउन, और जैसे ही कोई इम्परवियस लेयर मिलेगी वहाँ पे मूवमेंट उसका स्टॉप हो जाएगा, एंड देन इट विल फॉर्म द ग्राउंड वाटर. तो यदि आप इस डायग्राम में देखिए, तो दिस इज द रेनफॉल. तो रेनफॉल इज अकरिंग in this influent stream also, and also in this river also. Okay, that is the affluent stream. Now what happens, due to the infiltration and the percolation, what will happen, this water will move on to the ground, okay, below the ground, and where it will reach, it will move until and unless it is finding what, it is finding the impermeable layer, okay, or the confining layer. जैसे ही उसको impermeable layer मिली, वहाँ पे वो पानी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, and whatever be the depth to which the water is getting stored, that is called as the water table. तो ये आपका बेसिक यहाँ पे हो गया कि ग्राउंड वाटर कैसे फॉर्म होता है. सो दिस एग्जिस्ट इन द voids ऑफ द सॉइल along with the soil solids. Okay. नेक्स्ट इज द डिस्चार्ज फ्रॉम ग्राउंड वाटर. तो ग्राउंड में पानी, अंडरग्राउंड में पानी मौजूद तो है, बट आप उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसको आप एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे. ओके सो देर आर टू वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ नेचुरल वे एंड देर इज़ एन आर्टिफिशियल वे. नेचुरल वे के रूप में यदि आप देखें तो लेक्स में, रिजर्वायर में और स्प्रिंग में इस तरीके से पानी आपका एक्सट्रैक्ट होता है. स्प्रिंग की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में और हिमाचल में आपको स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे. यूएसए में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है हॉट वाटर स्प्रिंग का, तो वहाँ पे भी स्प्रिंग्स का नेचुरल वे है जहाँ से ग्राउंड वाटर बाहर निकलता है. आर्टिफिशियल वे में आप पंपिंग के द्वारा पानी निकाल सकते हैं ग्राउंड से. ओके सो दीज आर द टू वेज बाय विच द ग्राउंड वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूटिलाइज्ड बाय द पीपल. यदि हम बात करें ग्राउंड वाटर की, तो उसके अदर सोर्सेज में द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ विच इज़ कैरिड अपवर्ड इन द इंट्रूसिव रॉक. ओके तो ये जो वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं उसके साथ ये वाटर जो प्रेजेंट होता है वो ऊपर आ जाता है. सेकेंड इज द वाटर ट्रैप्ड इन सेडिमेंट्री रॉक ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन. तो सेडिमेंट्री रॉक का क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड लेयर बाय लेयर. ओके सेडिमेंट्स, ओके दीज आर फॉर्म्ड लेयर बाय लेयर बाय द वेरियस डिफरेंट सेडिमेंट्स. तो जितना भी वाटर इसमें ट्रैप्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज दिस वाटर दैट इज इन देयर. अच्छा, ये जो वाटर है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता नहीं है, और साथ ही में इसके पास ये जो रॉक है उसके मिनरल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मौजूद मिल जाती हैं. सो इट इज़ बिकॉज इट इज़ हाईली मिनरलाइज्ड वाटर एंड ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी. सो दीज sources cannot be utilized for your consumption, for the purpose of consumption. Now let us talk about the zones of subsurface water. So let us talk about first thing, that is the ground surface. So this is the ground surface here. Okay, just focus on this portion here, that is the ground surface. Now what will happen, that whenever the rain falls, whenever the rain or the precipitation falls, then what will happen, it will first saturate the nearby soil. और जो नियर बाय सॉइल है ग्राउंड के, वो क्या होती है, दैट इज हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. तो इसको हम बोल देते हैं सॉइल वाटर जोन. ओके तो प्लांट जो है जहाँ से भी वाटर एक्सट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सॉइल वाटर जोन. सेकेंड इज द पेलिकुलर एंड द ग्रेविटेशनल वाटर. जो पानी यहाँ पे यूटिलाइज हो गया इस जोन को सैचुरेट करने के बाद, जब ये पानी और नीचे जाएगा देयर इज एक्स्ट्रा वाटर, एंड व्हेन इट परकुलेट्स तो यहाँ पे पेक्युलर वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर यहाँ पे नीचे आता है.
पेलिकुलर वाटर इज नथिंग बट जो सॉयल सॉलिड्स हैं उसके मॉलिकुलर अट्रैक्शन के कारण जो पानी वहाँ पे रिटेन कर रहा है, दैट इज द पेलिकुलर एंड द ग्रेविटेशनल वाटर. Now what will happen, it will again percolate down and the excess water due to the force of gravity it will meet the water table here. और जब ये वाटर टेबल तक यहाँ पहुँचता है तो वाटर टेबल के जस्ट ऊपर वाला जो जोन है, ओके, ड्यू टू द कैपिलरी फॉर्मेशन, कैपिलरी प्रोसेस के कारण ये पानी यहाँ तक भी इस जोन को सेचुरेट कर देता है. सो द कैपिलरी फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन द थर्ड स्टेज. तो ये जो तीन पोर्शंस की हमने बात करी, द कैपिलरी फ्रिंज, द पेलिकुलर एंड द ग्रेविटेशनल वाटर एंड द सॉइल वाटर जोन, तो ये तीन चीज़ मिलकर बनाते हैं जोन ऑफ एरेशन. यहाँ पे जो सैचुरेशन की वैल्यू है वो 1 से कम है, यानी कि 100% नहीं है. द सॉइल इज़ नॉट 100% सैचुरेटेड, यानी कि S इज लेस देन 1, दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज देयर बट उसमें 100% वाटर मौजूद नहीं है. ओके, दैट इज नॉट देयर. ओके, बिकॉज सम एयर विल बी देयर एंड सम अदर थिंग विल बी देयर. बट जब हम यहाँ वाटर टेबल की बात करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इतने जोन में दो चीज़ें हैं, एक तो सॉलिड्स, कौन से सॉलिड्स, सॉयल सॉलिड्स, एंड दे विल बी वाटर. तो ये वाटर कहाँ पे फिल होगा, जितने भी वॉइड्स होंगे, ऑल द वॉइड्स, दैट इज द 100% वॉइड्स आर फिल्ड विद द ग्राउंड वाटर. तो सॉयल सॉलिड्स के साथ वाटर पूरे तरीके से वॉइड्स में भरा होगा. तो दिस इज कॉल्ड एज द ग्राउंड वाटर और इसी को हम बोल देते हैं जोन ऑफ सैचुरेशन. तो दीज आर टू जोन्स दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे आपको दो टर्म और दिख रहे होंगे, दैट इज द सस्पेंडेड वाटर और द वेडोस वाटर या फिर वेडोस वाटर जोन. तो ये जो जोन है जोन ऑफ एरेशन, दैट इज कॉल्ड एज द सस्पेंडेड वाटर या फिर वेडोस वाटर जोन. ये सस्पेंडेड वाटर है, बट ये जो है ना, जो ये आपका ग्राउंड वाटर है, दैट इज द सेटल्ड वाटर. ये तो नीचे आके रुक गया है. क्यों रुका है, बिकॉज यहाँ पे उसको इम्परमेबल लेयर एक मिल गई है. जहाँ पे भी इम्परमेबल लेयर मिली वहाँ पे क्या होगा, पानी का ट्रैवल तो अभी भी पॉसिबल होता, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इस इम्परमेबल लेयर के बाद वो पास नहीं कर पाएगा नीचे पानी. सो द वाटर विल बी स्टोरिंग अप हेयर. अगर यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखिए, इधर की साइड फोकस करिए, तो यहाँ पे दिस वेल इज देयर. इफ अ वेल इज कंस्ट्रक्टेड इट हैज़ टू गो अंटिल दिस वाटर टेबल डेप्थ. यदि ये वाटर टेबल डेप्थ तक नहीं जाता है, सो इट विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द वाटर. ओके, सो दैट इज वन थिंग. एंड इफ द रिवर इज देयर देन द वाटर विल बी moving to this zone also, which we saw in the previous diagram also. So this is the zone of subsurface water. So let us talk about the things that we have discussed in the diagram now. The water bearing formation of the earth's crust act as conduits for transmission and as reservoirs of storage of groundwater. इसका आप यदि मतलब समझना चाहें तो यदि ये ग्राउंड लेवल है, ओके, एंड इट इज़ लाइक समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज द इम्परमेबल बाउंड्री. तो पानी जब आएगा ग्राउंड से इन्फिल्ट्रेट करके, परकोलेट करके, सो इट विल बी सेटलिंग डाउन हेयर. ओके, एंड अगर मैं कहता हूँ कि कुछ यहाँ पे बाउंड्री है किसी कारणवश, पर ये बाउंड्री जो है परमिएबल बाउंड्री है, ये बाउंड्री परमिएबल बाउंड्री है, एंड द ग्राउंड स्लोप इज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे इस तरीके का स्लोप है. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो भी वाटर कलेक्ट हुआ है, ये जो दूसरा जोन है, लेट्स से दिस इज द जोन 1 हेयर, इस यहाँ तक, और दिस इज द जोन 2 हेयर. तो ये जो वाटर यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, ये जो है इस सेकेंड जोन में भी बाय द फ्लो ऑफ ग्रेविटी, बाय द वे ऑफ स्लोप ये पहुँच जाएगा. जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो बाउंड्री है वो परमेबल है, और ये जो है कंटिन्यूअस, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन हेयर, दिस इज द कंटिन्यूअस फॉर्मेशन. यदि आप बात करें तो ये एक तरीके से पाइप की तरह काम कर रहा है. दिस पोर्शन इज एक्टिंग एज अ पाइप और द कंडूट. सो द वाटर विल move on from one aquifer to other aquifer if the boundaries are permeable and the water has been allowed to pass through the different boundaries naturally, not artificially. Okay, so the water bearing formation जो कि यहाँ पे aquifer है, और ये aquifer कौन सा है, जो भी आपका saturated zone है, that's this aquifer, that is of the earth's crust, acts as conduits for the transmission and as reservoirs of storage of groundwater. So that is one point. So this is one diagram that we have already discussed, जिसमें हमने जोन ऑफ एरेशन की बात करी, जोन ऑफ सैचुरेशन की बात करी, ग्राउंड वाटर की बात करी जोन ऑफ सैचुरेशन में, एंड देन यहाँ पे जो जोन ऑफ एरेशन है उसको हमने जो और नाम दिया है वो है सस्पेंडेड वाटर या फिर वेडोस वाटर. तो यहाँ पे जो भी वाटर प्रेजेंट है उसको हमने इस नाम से समझा है. एंड देन दिस वॉज द इम्परमेबल बाउंड्री, दैट इज द बेड रॉक. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स हियर, जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ सैचुरेशन.
और जोन ऑफ सैचुरेशन को ही हम लोग ग्राउंड वाटर जोन भी बोलते हैं। लेट अस सी द पॉइंट्स नाउ। जो हमने पहला पॉइंट देखा जोन ऑफ एरेशन में, दैट वाज द सॉइल वाटर जोन। इट इज़ नियरर टू द ग्राउंड सरफेस, plants extract water from this zone. Okay, so the soil water zone is important for what? It is important for the plants. Second is the intermediate zone. It is the pellicular and the gravitational water which occurs in this zone. Third is the capillary zone, जहाँ पे due to the water table the water rises up to some distance above the water table and it is called as the capillary zone. So water is held by the capillaries there. Second zone is the zone of saturation which lies below the zone of aeration. तो यदि मैं बात करूँ तो zone of aeration plus zone of saturation, these two zones will be around 100 से 1000 मीटर के बीच में. Okay, so these zone will be between below the ground level from the surface, it will be what, around 100 से 1000 मीटर. अब ये वैरी भी करता है. यदि हम बात करें फॉर द क्रिस्टलाइन रॉक के लिए दिस वैरीज, द वाटर टेबल जहाँ पे लाई करता है, this is around 100 meters below the surface of the earth, below the ground level. यदि हम बात करें for the second thing, that is the sedimentary rock, so इसके लिए लगभग 1800 मीटर के आसपास this is lying. But the thing is कि this 1800 मीटर ना, at this level the water which is available, that is very much lesser in quantity or it is very much difficult to extract. सो जनरली हम बात करते हैं कि हमें 100 से लेकर 1000 मीटर के बीच जो भी पानी मिलता है वो हम आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जोन ऑफ सैचुरेशन. इन दिस जोन ऑल द पोर्स आर फिल्ड विद द वाटर एंड द वाटर टेबल फॉर्म्स इट्स अपर लिमिट एंड द प्रेशर एट वाटर टेबल सरफेस इज एटमॉस्फेरिक. सो हमने बात करी थी यहाँ पे कि दिस इज द, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड लेवल और यहाँ पे ये वाटर टेबल है. सो द वाटर इज पासिंग हियर. तो जितने भी वॉइड्स हैं इस जोन में, they are completely filled with water. So all the pores are filled with water and then water table forms its upper limit. तो ये जो zone है, this is the zone of saturation. So these are the two zones that we will be talking about. Third point is this water table. Water table है क्या चीज़? Okay, it is the surface of the water body which is constantly adjusting itself towards an equilibrium condition. If there were no recharge to or outflow from the groundwater in the basin, the water table would eventually become horizontal. Now the thing is here कि if this is the ground level और एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे let's say this is a horizontal surface, तो जो भी वाटर यहाँ पे फॉल कर रहा है अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, so what will happen? The water will be collecting here और जो ये वाटर टेबल है this will be remaining horizontal or I would say parallel to the bed slope. But यदि आप extraction करने लग जाते हैं, if you are creating a well here or digging a well here, then some discharge is you are taking it out, तो जो भी water table होगा that will be slightly reducing. तो जो water table है वो कम होना start हो जाएगा. So that will be constantly in rate of fluctuation. तो वो हमेशा fluctuate करता रहेगा. So it is the surface of the water body which is constantly adjusting itself towards an equilibrium condition. Now when we talk about this hydrogeological formations, so there are diversified geological formations which occur in the Indian subcontinent. That is the considerable lithological and chronological variations. तो rock और आप जितने भी layers में नीचे जाते जाएंगे वहाँ पे और समय के साथ साथ भी आप देखेंगे तो बहुत सारे variations देखने को मिलते हैं in the ground surface. Okay, underground surface. Then there are complex tectonic framework क्योंकि जो भी earthquake वाली plates रहती हैं, geological plates रहती हैं, those will also be moving and relieving the pressures. Then there are climatological dissimilarity which also cause the somewhere in some places there is a very much amount of rainfall and in some places the rainfall is very much lesser. तो उसके कारण भी जो हाइड्रोजियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वहाँ पे कुछ जगहों पे ज़्यादा पानी मौजूद होगा और कुछ जगहों पे ग्राउंड वाटर विल बी वेरी मच लेसर. एंड देन वेरियस हाइड्रोकेमिकल कंडीशंस आल्सो अफेक्ट दिस हाइड्रोजियोलॉजिकल फॉर्मेशंस. Broadly, two groups of rock formations have been identified, that is the porous formations and the fissured formations. Porous formations मतलब कि voids की amount यदि आप बात करें तो वो तो ज़्यादा है. Okay? Fissured formations में क्या होता है कि यदि rock है और वो cracks है, okay? Rocks में यदि cracks होता है तो what will happen? It will having the permeability property.
ओके उसके पास यदि गैपिंग है, अच्छी खासी गैपिंग है, सो द वाटर विल बी मूविंग वेरी स्मूथली. इट इज़ द एबिलिटी टू पास द वाटर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम. प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि दिस इज द मीडियम, दैट इज द सॉयल मीडियम या फिर द रॉकी मीडियम, जिसमें से आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम सच एज द पोरोसिटी एंड द परमिएबिलिटी. यदि हम बात करते हैं पोरोसिटी की, तो पोरोसिटी मतलब क्या हुआ कि कितना पोरस है आपका मीडियम. ओके अच्छा, इट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ द वॉइड्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉयल और द वट एवर बी द मीडियम, है ना. रॉकी है मीडियम, तो उसमें भी हो सकता है. रॉक वाले में दिक्कत बस ये आती है कि आप उसमें से पानी आराम से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर उसके पास पैसेज नहीं है. ओके तो इफ द परमिएबिलिटी इज लो, देन उस केस में यू विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द वाटर. द पोरोसिटी सिग्निफाइज द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मीडियम. तो पोरोसिटी क्या है? एक तरीके से पोरोसिटी इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉयल. तो अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉयल, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉयल, और उसमें से कुछ जोन जो है सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दिस इज द सॉलिड्स पार्ट, और इसके अलावा जो खाली स्पेस है इसको मैंने डिनोट किया वीवी से, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. तो सॉयल में यदि जितने ज़्यादा वॉइड्स होंगे यानी उतनी उसकी एबिलिटी है वाटर को कलेक्ट करने की, वाटर को स्टोर करने की. दिस इज़ वन प्रॉपर्टी. तो वो अगर मान लीजिए जैसे क्ले है, तो क्ले की पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि उसमें वॉइड ज़्यादा है, तो पानी को स्टोर तो कर लेगा, बट द प्रॉब्लम इन द क्ले इज दैट इट विल नॉट बी एबल टू डिस्चार्ज और द परमिएबिलिटी इज़ वेरी मच लोअर. ओके सो डिस्चार्ज की जब बात करते हैं तो हम बात करेंगे परमिएबिलिटी की. एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू परमिट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स. ओके सो वॉइड्स हैं, लेट अस सी हियर. अगर हम एक्चुअल डायग्राम की बात करें तो इस तरह से कुछ सॉलिड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं किसी भी सॉयल मीडियम में. ओके दीज आर द सॉयल विच आर प्रेजेंट, सॉयल पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट. कुछ छोटे पार्टिकल्स भी होंगे. नाउ व्हाट हैपेंस कि जब भी आपका वाटर पास करेगा, वाटर विल हैव टू फाइंड इट्स ओन वे, और जो ये खाली स्पेसेस हैं यहाँ से ये मूव करने की कोशिश करेगा. दीज आर द ओपन स्पेसेस लाइक दिस. जितने भी ओपन स्पेसेस हैं, दीज आर द वॉल्यूम ऑफ voids which are present in the soil. Okay, so this permeability is the ability of the medium to permit the flow of water through its interconnecting voids. यदि मैं बात करूँ porosity की, so it depends upon three major things, that is the packing of the grains, shape of the grains, okay, and also the this thing, what is the degree of sorting there, degree of sorting, यानी कि छोटे बड़े पार्टिकल्स कितने ज़्यादा मौजूद हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. यदि हम बात करें परमिएबिलिटी की, तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द पोर्स. पोरस तो है, बट पोर्स का साइज क्या है, जो वॉइड्स हैं उनका साइज क्या है. यदि वॉइड्स का साइज बड़ा होगा तो व्हाट विल हैपन, द वाटर विल बी एबल टू इजीली पास थ्रू इट एंड देन कंटिन्यू टू जॉइन इट एज अ ग्राउंड वाटर. ओके सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. यदि मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो एक शेल रॉक होती है. अब ये शेल रॉक का क्या है, दिस शेल रॉक इज हैविंग अ वेरी हाई पोरोसिटी. पोरस तो है, इसके पास वाटर स्टोरेज एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, बट द थिंग इज इसकी परमिएबिलिटी बहुत ही कम है, जिसके कारण यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द वाटर. ओके सो सी हियर अ फ्यू पॉइंट्स इन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम. Certain quantity of the water is retained over the surface of medium particles due to the molecular attraction between the medium particles and the water molecules, जिसके बारे में हमने बात करी कि ये जो है जो सॉलिड्स हैं, ओके दी सॉयल सॉलिड्स. तो अगर मैं इसको यदि मैग्नीफाई करूँ तो ये सॉयल सॉलिड्स के आसपास देयर इज सम अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज बीइंग अट्रैक्टेड देयर. तो ये जो वाटर है दैट इज कॉल्ड एज द पेलिकुलर वाटर, जो कि मॉलिकुलर अट्रैक्शन के कारण इससे जुड़ा हुआ है. ओके मॉलिकुलर अट्रैक्शन के कारण इस सॉयल सॉलिड से जुड़ा हुआ है. So some water will be retained around the solid particles, but what will happen, the total quantity of water that is retained or present in the voids cannot be drained by gravity. तो कुछ पानी जो यहाँ पे रिटेन कर गया है, तो water is coming here but some water is retained here. तो जितना वाटर यहाँ पे रिटेन हो गया, लेट्स से यहाँ पे 100 यूनिट का वाटर इन्फिल्ट्रेट किया. नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स से 4 यूनिट्स हैव बीन रिटेन्ड हियर. तो जो वाटर यहाँ पे वाटर टेबल के साथ आके मिलेगा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अराउंड 96 यूनिट्स.
ओके, सो ये जो वाटर है यहाँ पे रिटेन कर गया और जो ग्रेविटी के कारण नीचे आ गया है, दिस इज दिस पोर्शन। सो पूरा वाटर ग्रेविटी के द्वारा रिटेन नहीं करता है। ओके, सो द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द मीडियम इज इंडिकेटेड बाय स्पेसिफिक यील्ड। ओके, जो ड्रेन कर जाए वॉइड से, जो ड्रेन करके कहाँ मिलेगा, ड्रेन करने के बाद ये जो ग्राउंड लेवल है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ड्रेन करने के बाद कहाँ मिले, जो यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स में नहीं अटका रह गया, ड्रेन करने के बाद कहाँ मिलेगा, वाटर टेबल पे मिलेगा। एंड दिस वाटर इज समथिंग दैट इज ऑफ यूज फॉर यू। ओके, सो दिस वाटर इज समथिंग दैट इज फॉर यूज फॉर यू, और यही वाटर यील्डिंग कैपेसिटी को दिखाएगा। ओके, सो दिस इज an indication of water yielding capacity of an aquifer. The amount of water that is retained in voids of the medium is indicated by the specific retention. So these are the two things that are there. तो specific yield आपके practically काम का है, okay, that is कि उसकी water yielding capacity कितनी है। And if you want to show it mathematically, तो this specific yield is the volume of water that is drained by gravity, जो ड्रेन होकर नीचे आ गया है, वाटर टेबल से मिल चुका है, एंड इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एंड स्पेसिफिक रिटेंशन इज व्हाट, इट इज वेरी मच लेसर इन अमाउंट, एंड दिस इज व्हाट वॉल्यूम रिटेन्ड अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब एक लास्ट पॉइंट, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे कि जो स्पेसिफिक रिटेंशन है वो क्या हो रहा है, दैट इज रिटेनिंग इन द सॉइल। अगर सॉइल के आसपास रिटेन हो रहा है, तो यदि मैं बात कर रहा हूँ कि जोन ऑफ एरेशन एक था और एक जोन ऑफ सैचुरेशन था, तो जोन ऑफ एरेशन में जो सबसे ऊपर वाला जोन था, जहाँ पे देयर वर प्लांट्स ग्रोथ, ओके, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो ये जो स्पेसिफिक रिटेंशन है ये आपका हेल्प करता है प्लांट्स के लिए, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं फील्ड कैपेसिटी। ओके, फील्ड कैपेसिटी विच यू विल ऑल्सो स्टडी इन डीप इन इरीगेशन पार्ट। सो इन द इरीगेशन सब्जेक्ट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस पोर्शन। तो ये फील्ड कैपेसिटी होता है विच इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट्स ग्रोथ देयर। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर देयर, स्पेसिफिक यील्ड है और एक स्पेसिफिक रिटेंशन है। Okay, so this thing we will be discussing in the next class. Thank you for today.